ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے موجود ہوں گے کہ مسجد کے اندر اذان کے کلمات پکارے جائیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات ہمارے کانوں کے اندر موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ موبائل چلاتے ہیں یا کسی چیز میں مشغول ہیں تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، 15 منٹ باقی ہے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، اور جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اور آپ تصور کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو اس وقت میں، چھوڑو اگلے وقت میں نماز پڑھیں گے۔ کتنے لوگ تو ایسے بھی موجود ہیں کہ نماز چھوڑنے کے بعد ان کے دل میں یہ گوارا بھی نہیں ہوتا کہ ہم جا کر نماز کو مکمل کر لیں۔ نفس اللوامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی گناہ میں ملوث ہو جائیں، آپ اگر کسی نماز کو ترک کر دیں، آپ کسی عبادت کو چھوڑ دیں، آپ کسی گناہ کو کر بیٹھے، آپ زناکاری کر بیٹھے، جھوٹ بول پڑے یا کسی کے ساتھ بے ایمانی کر بیٹھے، تو یہی نفس لوامہ آپ کو اس گناہ کی طرف افسوس دلائے گا۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھی اور پیارے بچے اور اسلامی خیال، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد بھی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہ چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور حق کی طرف گامزن کروانے کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجا اور درود و سلام نازل ہے اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اس زندگی کے بھاگ دوڑ میں اس روح زمین پر جتنے انسان کو مبعوث کیا گیا ہے اور اس دنیا کے عیش و عشرت میں جو انسان زندگی گزار رہا ہے، ہر انسان اس تعلق سے جانتا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، زندگی میں اگر اعلیٰ مقام و رتبہ پانا ہے اور زندگی میں لوگوں کی نظر میں ایک بڑا ولی و کام کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ کسی بلینئر سے پوچھئے، کسی تجارت والے آدمی سے پوچھئے جس کا کاروبار بہت اعلیٰ مقام پر ہو، آپ اس سے سوال کیجئے کہ آپ کے اعلیٰ مقام پر ہونے کا کیا مقام، کیا رتبہ ہے، کیا وجہ ہے، ایسا کیا طریقہ ہے؟ آپ کو وہ کئی طریقہ بتلائے گا، لیکن آپ کو ایک طریقہ ضرور بتلائے گا کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا۔ ہم اس کام میں ملوث ہیں، ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں تو ہم اس کام کو انجام دینے میں کس طرح کا محاسبہ کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس ایک دن کے اندر اتنی کمائی ہو رہی ہے تو کہیں ہم اور آپ اس سے کم تو نہیں کما رہے، اس چیز کا محاسبہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں تم لوگ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گراؤ، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور بھی بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے دلوں کے اندر 3 نفس کو پیدا کیا رکھا ہے، 3 نفس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 53 یعنی کہ 50 اور 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا
کہ یقیناً ہم نے نفس امارہ کو پیدا کیا. یقیناً نفس امارہ وہ ایسی چیز ہے کہ انسانوں کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے. اگر ہم میں سے کسی کا دل اگر یہ گوارا کرتا، اگر کسی کا دل یہ چاہتا، ہم میں سے ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہم میں سے ہر انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر انسان کمیوں میں ملوث ہے، ہم میں سے ہر انسان گناہ میں ملوث ہے. ہر چیز کی عوض، ہر چیز کے بنا پر ہم کو ابھارنے والا اگر گناہوں کی طرف کوئی چیز ہے تو وہ نفس امارہ ہے. ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے موجود ہوں گے کہ مسجد کے اندر اذان کے کلمات پکارے جائیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات ہمارے کانوں کے اندر موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ موبائل چلاتے ہیں یا کسی چیز میں مشغول ہیں تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، 15 منٹ باقی ہے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی. اور جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اور آپ تصور کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو اس وقت میں، چھوڑو اگلے وقت پر نماز پڑھیں گے. کتنے لوگ تو ایسے بھی موجود ہیں کہ نماز چھوڑنے کے بعد ان کے دل میں یہ گوارا بھی نہیں ہوتا کہ ہم جا کر نماز کو مکمل کر لیں. کتنے لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ نمازوں کا تعلق اور ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. تو اپنی زندگی کو ایسا نہ بنانا. جب بھی آپ کا نفس آپ کو گناہوں پر مبتلا کرے، گناہوں کی طرف دوڑائے، تو یقین مانیے کہ یہ آپ کے نفس امارہ آپ کو گناہوں کی طرف بڑھا رہا ہے. آپ اس سے بچیے. ہم انسانوں کے اندر سب سے زیادہ لالچ پیدا کرنے والا یہی نفس امارہ ہے. آج ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو دیکھا جائے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات کر دی، کیا بہترین مثال پیش کر دیا کہ انسان اس قدر لالچ میں پڑا ہوا ہے، اس قدر گناہوں کی طرف ملوث ہوتا ہے، اس طرح دنیا کی ترقیوں میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے کہ اگر اس کو 2 سونے کے باغات دے دی جائے، 2 سونے کا باغ دے دیا جائے تو یہی بنی آدم، یہی انسان کہیں گے کہ میرے پاس تیسرا باغ بھی ہونا چاہیے. اللہ کی پناہ. ذرا تصور کریں، آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، آج ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے، ہمارے پاس تمام چیزوں کو مہیا کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بینک بیلنس والا بھی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھت کے نیچے رہنے کا موقع بھی عنایت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھائی بہن والا بھی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کو ہم پر باقی بھی رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نیکیوں کے راستے کو بھی مہیا کر دیا. لیکن افسوس کہ ہمارا آپ اس نفس امارہ کے چکر میں، اپنی لالچوں کے چکر میں ہم نے عبادتوں کو ترک کر دیا. میرے عزیز بھائیوں، آئیے دوسرے نفس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. سورہ قیامہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی گناہ میں ملوث ہو جائیں، آپ اگر کسی نماز کو ترک کر دیں، آپ کسی عبادت کو چھوڑ دیں، آپ کسی گناہ کو کر بیٹھے، آپ زنا کاری کر بیٹھے، جھوٹ بول پڑے یا کسی کے ساتھ بے ایمانی کر بیٹھے، تو یہی نفس لوامہ آپ کو اس گناہ کی طرف افسوس دلائے گا. اب اپنی گریبانوں کو جھانکیے میرے بھائیوں، اب اپنی گریبانوں کو جھانکیے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنی ضمیر کو ٹٹولیں کہ ہم اور آپ کس لیول پہ اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، کس لیول پر اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہے ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ ہم میں سے کتنے انسان ایسے موجود ہیں کہ اگر نماز ترک ہو جائے تو ہم اور آپ تصور کرتے ہیں کہ افسوس کہ ہماری نماز چھوٹ گئی. ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کہ ایک اپنے بھائیوں کے کوئی ایک معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھائی اگر ان کے مخالف کام کر دے تو ہم اور آپ زندگی بھر ان سے بات نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ نفس لوامہ ہمارے درمیان مر چکا ہے. ہمارے زمین سے، ہمارے دلوں کے اندر سے نفس لوامہ مردہ ہو چکا ہے، جس کے عوض ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ایک لمحے پر تصور نہیں ہوتا ہے. صرف اور صرف کس بھی عوض ہم اور آپ نفس لوامہ کو زندہ کریں، اپنے نفس لوامہ کو برقرار رکھیں، ثابت قدم رکھیں، جس کے ذریعے سے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں نفس لوامہ واپس سیدھے راستے پر لے کر آئے. تو میرے عزیز ساتھیوں،
आइए तीसरी चीज, तीसरा लफ्ज जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों के अंदर पैदा किया, हमारे अंदर पैदा किया, वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नफ्स अम्मारा को पैदा किया, नफ्स लव्वामा को पैदा किया, लेकिन इसी नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा से एक और चीज मुब्तला होती है, एक और चीज क्या होती है, वो है नफ्स मुतमइन्ना। और नफ्स मुतमइन्ना के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान पाने वाले नफ्स, ऐ अपने दरमियान खुशगवार जिंदगी गुजारने वाले नफ्स, आओ अपने रब की रज़ा की तरफ आ जाओ, लौटो अपने रब की रज़ा की तरफ आ जाओ, अपने रब को याद कर लो। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी, आओ अपने रब को राज़ी कर लो, आओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में शामिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ। इसी नफ्स मुतमइन्ना के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। मेरे अजीज साथियों, जरा तसव्वुर करें, हम और आप नफ्स लव्वामा को बरकरार रखेंगे, अपनी जिंदगी को खुशगवार तभी गुजार पाएंगे, इत्मीनान की जिंदगी तभी गुजार पाएंगे जब हमारे और आपके दरमियान नफ्स लव्वामा बरकरार होगी। जब हम और आप गुनाह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे, जब हम और आप ये एहसास अपने दिलों के अंदर रखेंगे, तब हम और आप जाकर अपने नफ्स को मुतमईन कर पाएंगे। और इसी नफ्स मुतमईना के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जन्नत है। तो मेरे अजीज साथियों, अपने आप का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों के अंदर ऐसे ऐसे नफ्स को पैदा किया, कभी हमने अपने आप का मुहासबा किया? जरा तसव्वुर करें मेरे अजीज साथियों, जरा तसव्वुर करें। हमारी जिंदगी 50 साल के होने के बावजूद, 40 साल की जिंदगी होने के बावजूद, 20 साल, 25 साल, 18 साल की जिंदगी होने के बावजूद, कभी हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा किया? कभी हमने ये मुहासबा किया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने रहने के लिए छत दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रहने के लिए घर दिया? कभी हमने ये तसव्वुर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाने के लिए खाना दे रहा है, हमें अल्लाह तबारक व तआला पीने के लिए पानी दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिदों में सुकून के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक दे रहा है? कभी हमने इस बात का तसव्वुर किया? कभी हमने मुहासबा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी चीजें दी और हमने रब के लिए क्या किया? कभी हमने खुद का मुहासबा किया? बिजनेस करने वाले अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हैं। बिजनेस करने वाले साल में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा या हफ्ते में एक दफा बैठते हैं, हिसाब किताब करते हैं और देखते हैं कि हमने इतना कमाया, इससे कम तो नहीं हो गया। जरा तसव्वुर करें, वो देखते हैं कि हम इतना कमाया करते थे, कहीं उससे कम तो नहीं हो गया या उससे ज्यादा हो रहा है। आज हम और आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावात, कि लोगों सुनो, मोमिनों की पहचान ये है कि वो नेकियों में सबकत करते हैं। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावात, यही नेकी, यही मोमिन है जो नेकियों में सबकत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोकर, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाकर, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर रोते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। यही मोमिन बंदे हैं। आज हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं किया, आज हमने अपनी कौम का मुहासबा नहीं किया, आज हमने अपनी मिल्लत का मुहासबा नहीं किया, जिसकी वजह से आज मुसलमान कौम बहुत पीछे जा चुकी है, जिसकी वजह से आज हम और आप बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारी जिंदगी का दारोमदार, हमारी जिंदगी का ताल्लुक, हमारी जिंदगी की खलकत, हम और आप जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के उस मकसद की तकमील भी हम और आप नहीं कर पाते। मेरे अजीज साथियों, आप जरा तसव्वुर करें, अभी हम और आप कहीं पर सफर करते हैं तो हमें और आपको गर्मी बड़ी शिद्दत महसूस होती है। हम और आप कहीं पर सफर करने के लिए चले जाए, कहीं मार्केट में चले जाए, तो सबसे पहले अगर हमारे वालिदैन हमसे कहेंगे कि तुम इस वक्त मार्केट में चले जाओ, हम और आप मना कर देंगे, कहेंगे नहीं, गर्मी इतनी शदीद है कि हम और आप नहीं जा पाएंगे बाहर, गर्मी इतनी शिद्दत हो चुकी है, हमें और आपको कूलर की हवा चाहिए, हमें और आपको एसी की हवा चाहिए, हमें और आपको पंखे
पंखे की हवा भी नहीं चाहिए। हमारा आज दारो मदार ऐसा हो चुका है, हमारा आप जिंदगी गुजार रहे हैं, हर मरहले में इस गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जब जहन्नम को हमारे सामने पेश करेगा तो हम और आप जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे भाई? हम और आप जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसी जहन्नम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इसकी एक चिंगारी अगर इस दुनिया पर फेंक दी जाए, उस जहन्नम की सिर्फ एक चिंगारी इस दुनिया पर फेंक दी जाए तो ये पूरी की पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। आज हम और आप उस जहन्नम का तसव्वुर नहीं करते। मेरे अजीज साथियों, हम और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा, अपनी जिंदगी के ताल्लुकात, अपने जिंदगी के मामलात रब की रजा के लिए नहीं करते हैं। हम बिजनेस के लिए करते हैं, कारोबार के लिए कर सकते हैं, अपने भाइयों से नक़दा ताल्लुकी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप का मुहासबा हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए नहीं कर पा रहे। बरोज़े क़यामत के दारोमदार अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बारहा बयान करता है कि तुम लोग जिस चीज को भुला बैठे हो, जिस कब्र आखिरत को भुला बैठे हो, जिस आखिरत और कब्र की मंजिल को भुला बैठे हो, याद रखो कि यहीं पर अल्लाह तबारक व तआला का हिसाब किताब होने वाला है। जरा तसव्वुर करें, हम और आप हर मरहले में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आसाइश की जिंदगी दी, लेकिन कभी हमने मुहासबा किया कि अल्लाह तबारक व तआला की इस पूरी जिंदगी में हमने और आपने कितनी नेकियां की? कभी हमने ये तसव्वुर किया कि फला भाई हमारी नमाज रोजा रखते हैं, आज आओ हम भी नमाज रोजा रख लें? कभी हमने तसव्वुर किया, कभी हमने अपने पहनावे पर भी तसव्वुर नहीं किया कि हमारा पहनावा कैसा है? कभी हमने आज तक ये भी तसव्वुर नहीं किया कि अगर हम किसी गैर समाज में चले जाए तो हमें कोई मुसलमान कहने वाला मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? हमने अपनी जिंदगी का ये भी तसव्वुर नहीं किया। मेरे अजीज साथियों, आज इस मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए। एक मर्तबा अपनी जिंदगी को टटोलिए, एक मर्तबा अपनी जिंदगी को टटोलिए और देखिए कि 25 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी या यूं करें 40 साल की जिंदगी में हमने कितनी नेकियां कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमने कितनी नेकियां कर दी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शम्स के अंदर बयान किया, कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि तहकीक की वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स की तज़किया कर ली। वो शख्स नामुराद नहीं होगा, वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कामयाब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी उस शख्स को मिल गई जो शख्स अपने नफ्स को टटोले, जो शख्स अपने नफ्स का मुहासबा करे, जो शख्स अपने नफ्स का तज़किया कर ले, अपने नफ्स को पाक और साफ कर ले, अपने नफ्स को मुतमइन्ना बना ले और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शामिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस नफ्स के ताल्लुक से बयान करता है कि वही शख्स कामयाब है। नामुराद कौन है? जो अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं करता। नामुराद वही है जो अपनी जिंदगी का अपनी टटोलता नहीं है। नामुराद वही है जो अपनी जिंदगी में हर लम्हे पर अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाला नहीं है। वही शख्स नाकामयाब है। मेरे अजीज साथियों, हमारे सलफ सालिहीन किस कदर अपने नफ्स का मुहासबा किया करते हैं। इमाम अहमद अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, अपनी किताब के अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल को पेश करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में हम आप जानते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मिंबर पे चढ़ के सबके सामने मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से कहते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो यही हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी होंगे। इनकी नेकियां इतनी ज्यादा है कि शुमार करना भी जाए तो शुमार नहीं कर सकते। इन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर फारूक जिस गली में चले जाए उस गली से शैतान को बहका दिया जाता है, शैतान हट जाता है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तो यही है जिनके ताल्लुक से आज पूरी की पूरी कौम मिल्लत को, जिनके ताल्लुक से आज पूरी इंसानियत को या यूं कहें पूरी की पूरी मुसलमान को इसी कौम के ताल्लुक से माना जाता है। कहते हैं कि अगर इनके दरमियान कोई ऐसा आदमी शख्स मौजूद था जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा मौजूद था, इसीलिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कितनी बड़ी बात कहते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत
मुझको दुनिया जैसी दौलत दे दे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते कि बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया जैसी या इस दुनिया जैसी डबल दुनिया अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें सोना दे दे और अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहे कि तुम इस सोने को मुझसे दे दो, इस माल दौलत को मुझे दे दो और तुम जाओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शामिल हो जाओ और जाओ अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में शामिल हो जाओ, तो ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते कि मैं वो तमाम जायदाद, वो तमाम माल दौलत, वो दुनिया की तमाम ऐसे रिश्वत में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कुर्बान कर दूं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मुझसे इतना मांग लो। जरा हो करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती है। ऐसा शख्स अपने सहाबा के दरमियान, अपने शागिर्दों के दरमियान कितनी बड़ी बात कह रहा है। और यही नहीं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से बयान है, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी किताब में ये चीज मौजूद रखते हैं, इस चीज को रखते हैं और बयान करते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने शागिर्दों के सामने वो मौजूद है, अपने शागिर्दों से, अपने लोगों से, अपने सामने मौजूद होने वालों से कहते हैं कि तुहासिबु अन युहासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, कि लोगों सुनो, तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा किया, इस रूह ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इबादत के लिए मबूस किया, तो सुनो, तुम लोग खुद का मुहासबा कर लो, तुम लोग खुद का मुहासबा कर लो, अपने नफ्स का मुहासबा कर लो, तुम जिंदगी में जिस मरहले पर जिंदगी गुजार रहे हो, नेकियां तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हो कि नहीं गुजार रहे हो, इस जिंदगी को टटोल लो, इस नफ्स को टटोल लो, इस नफ्स का मुहासबा कर लो, कबल इससे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मुहासबा करेगा। जरा गौर करिए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? सलफ से कह रहे हैं, सहाबा से कह रहे हैं, ताबईन से कह रहे हैं। कहने वाला सहाबा ताबईन से कहा जा रहा है, जरा तसव्वुर करें कि हम और आप किस मरहले में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम और आप सहाबा से कितने दर पर नीचे हैं, हम और आप सहाबा के जूते के नोक के बराबर भी नहीं है, हम और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं करते। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी का मुहासबा करने लगे तो हमारी जुबान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी का मुहासबा करने लगे, हमारी जुबान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गालों से बुला देगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथों को बुलाने लगेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कदमों से सवाल करने लगेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी आंखों से सवाल करने लगेगा। और यही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ सवाल करेगा, यही आंख, यही कान, यही नाक और यही पैर, यही हाथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब भी देंगे। तो जरा तसव्वुर करें, हम और आप किस मरहले में जिंदगी गुजार रहे हैं और हम और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं करते। यही नहीं, आप हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़े बताइए, यही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु होते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले हैं तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। सहाबा में से अगर कोई शख्स ऐसा मौजूद है जो सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करता है, जिसके जरिए से आज हम और आप नेक अमल कर रहे हैं, जिनके जरिए से आज हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जानते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं कि लोग जब उनकी वफात का वक्त आता है, उनके सामने उनके शागिर्द होते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा रोते हैं। तमाम शागिर्द पूछते हैं कि ए अबू हुरैरा, तो आप क्यों रो रहे हैं? ए अबू हुरैरा, आप क्यों रह रहे हैं? आप तो अल्लाह तबारक व तआला की हदीसों को लिखा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को लिखा करते थे, आप इतना क्यों रो रहे थे? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होने वाला हूं, अब मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने वाला हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल करेगा, मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने क्या जवाब दूंगा? अल्लाह तबारक व तआला मुझे किसी चीज के ताल्लुक से पूछ ले, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे ये कह दे कि तुमने ये गुनाह का काम क्यों अंजाम दिया, तुमने ये काम अंजाम क्यों दिया? अगर यही नहीं हो, मैंने ऐसा कोई गुनाह किया हो जिसके जरिए से हम और आप नहीं जानते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाल कर ले, तो हम और आप क्या जवाब देंगे? वही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने शागिर्दों को कहते कि मुझे इस बात का खर्चा है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे किसी गुनाह के बदले पकड़ ना ले। यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का डर है। यही नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल को याद कीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि सबसे पहले खलीफा राशिदीन में से हैं, जो सबसे पहले खलीफा थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़कर अपने अय्याम मरज़ूल मौत में अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर मुझे इस मदीने में कोई किसी के घर में नूर दिखाई दे रही है तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में। इन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अबू बकर सिद्दीक है, ये अपनी बात में सदाकत करने वाला है। इन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में मेरे साथ होंगे। इन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के बाद मेरा कोई खलील होता, मेरा कोई दोस्त होता तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु होते। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हैं। जरा तसव्वुर करें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि काश कि मैं परिंदा होता, काश कि मैं परिंदा होता और अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कोई सवाल नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर मैं मर के जाता तो अल्लाह तबारक व तआला मेरा मुहासबा नहीं करता, मुझसे हिसाब किताब नहीं लेता। काश कि मैं परिंदा होता। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मौका दिया। हम बारहा खुतबे जुमा में आते हैं, शरीक होते हैं, हम खुतबा सुनते हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपने आप का मुहासबा कर लें। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अब तक मौका दिया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अब तक बाकी रख रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे उम्मीद रखता है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर जाएंगे, हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये उम्मीद रखता है, इस उम्मीद पर खड़े उतरिए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रोकर गिड़गिड़ाकर लम्हे भर जिंदगी के एक मरहले में भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में, अल्लाह तबारक व तआला की उल्फत में, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी में अगर हमने एक आंसू भी बहा दिया तो यकीन मानिए ये आंसू अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी बदल देगा। मेरे अजीज साथियों, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। बरोज़े क़यामत हमारा और आपका मदद करने वाला कोई नहीं होगा। बरोज़े क़यामत हमारी और आपकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा। बरोज़े क़यामत हमारी बरबारातों को, हमारे मामलात को, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला कोई नहीं होगा। बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। लोग अल्लाह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाने से डरता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे तो बरोज़े क़यामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मैं खौफनाक हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा मुहासबा कहीं करने ना लगे, मुझसे हिसाब किताब ना लेने लगे, मुझे खौफ है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाऊं। बरोज़े क़यामत का मंजर ऐसा मंजर होगा। मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज साथियों, हम और आप इस जुए कबीर पर अपने आप को खलील कहने वाले, दोस्त कहने वाले, वालिदैन कहने वाले, भाई कहने वाले, बरोज़े क़यामत हम और आप उनके साथ खड़े होने वाले नहीं होंगे। हम आज किसी छोटे भाई के पास सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं, किसी बड़े भाई के पास सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं, हम और आप बरोज़े क़यामत नहीं शामिल हो पाएंगे। अरे वो माए जो अपने बच्चों पर कुर्बान हो जाती है, वो माए जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वो माए जो अपने बच्चों की परवरिश में एक मर्तबा भी 1% भी छोड़-छाड़ा नहीं करती है, वो माए जो अपने बच्चों के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। यही नहीं, इसी जिंदगी को टटोलिए, उस जिंदगी को टटोलिए, सबक सालिहीन के मरहले को देखिए, वो माए जो अपने बच्चों को लिए कुर्बान किया करती थी, वो माए बरोज़े क़यामत हमारे और आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी। हम और आप अपनी दोस्ती के लिए, अपनी यारी के लिए, अपने कारोबार के लिए अल्लाह तबारक व तआला को भूल बैठे। वो कारोबार, वो रिश्तेदारी हमारा और आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला के सामने सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारी सिफारिश कौन करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी सिफारिश कौन करेगा? हमारे नेक अमाल। हमारी सिफारिश कौन करेगा? हम जो कुरान की तिलावत करते हैं वो। हम और आप जिस चीज का अमल करते हैं, जिस चीज के ताल्लुकात हम और आप अपनी जिंदगी को भूल बैठे हैं, यकीन मानिए बरोज़े क़यामत ये काम आने वाली चीज नहीं है। बरोज़े क़यामत ये हमारी मदद करने वाली चीज नहीं है। अब भी मौका है, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर ले। अभी सोच ले कि हमने इतनी इंसाफ की जिंदगी गुजारी, कभी हमने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए किसी चीज को कुर्बान किया? अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए हमने किसी अच्छे काम को या किसी नेक अमल को अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया, या अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए अपनी बुरी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला
के सामने कुर्बान कर दिए, कभी हमने ऐसी चीज की तौफीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे बन जाइए, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बान बंदे बन जाइए, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान बन जाइए। यकीन मानिए कि हमारे औलाद के अमाल, हमारे औलाद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत यही चीज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश करने पर मजबूर करे। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। मेरे अजीज साथियों, अपने मरहले को सोचें, अपने तसव्वुरात को सोचें और अपने दिल पर यह बात अफसोस की दिलाए कि आज हम और आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि हजारों तमन्नाएं ऐसी कि हर तमन्ना पे दम निकले, हजारों तमन्नाएं ऐसी कि हर तमन्ना पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो हमें और आपको चाहिए कि इन तमन्नाओं के चक्कर में ना पड़े, इन तमन्नाओं के चक्कर में ना पड़े, लालच के चक्कर में ना पड़े। अपने रब को याद करें, अपने रब की बारगाह में आए, मग़फ़िरत करें, रब के यहाँ आकर अपने आंसुओं को बहाएं और अल्लाह तबारक व तआला से मुरादें मांगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फरियाद करें। अल्लाह तबारक व तआला घरों में कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाही तो हमें सुन्नत पे ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, इलाही तो हमें खुद का मुहासबा करने की तौफीक दे, इलाही तो हमें जन्नत का रास्ता दिखा, इलाही तो हमें मग़फ़िरत का रास्ता दिखा, इलाही तो हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। इलाही हमारा जब भी खात्मा हो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।